اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آئی ٹیچ اینڈ گرو یوٹیوب چینل کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں تدریس کے طریقے کو مؤثر بنانے کے لیے ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے اے ٹیچرز سیلف ایویلیویشن آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ ہم اپنی تدریس کا اس وقت تک صحیح اندازے سے جائزہ نہیں لگا سکتے جب تک ہم اپنی ہی تدریس کے طریقہ عمل کے بارے میں خود سے سوالات نہیں کرتے، یا اپنے طریقہ تدریس کی تشخیص نہیں کرتے، یا اس کے حوالے سے ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اہم پوائنٹس کی طرف۔ سب سے پہلے مؤثر تدریس کے لیے ایک اچھے استاد کو جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے پلاننگ اور پریپریشن، یعنی منصوبہ بندی اور تیاری۔ معزز اساتذہ کرام، آپ نے دیکھا ہوگا زندگی کے تقریباً تمام شعبہ جات میں، سماج کے اندر کیے جانے والے تمام کاموں میں جب بھی ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ایسا نقطہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے بجا لائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پبلک سیکٹر کے اندر تدریس کا جو عمل دور حاضر میں جاری ہے، اس میں استاد سب سے بڑی جو ایک غلطی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پلاننگ اور پریپریشن پہ غور نہیں کر رہا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے مستقبل کی ملک کی ترقی اور ملک کی شان، عزت اور پہچان کے حوالے سے جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہم سے سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کچھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ خیر، ہم آتے ہیں پلاننگ اور پریپریشن پر۔ اپنے انداز تدریس کے جائزے کے لیے ایک استاد خود سے کس طرح کے سوالات کر سکتا ہے، کیسے وہ اپنی تدریس کا جائزہ لگا سکتا ہے اور خود اپنے اس طریقہ کار کی تشخیص کیسے کر سکتا ہے۔ منصوبہ بندی اور تیاری کے عمل میں سب سے پہلے جن چیزوں کا ایک استاد کو سوچنا ہے ان میں نمبر 1، ڈو آئی پلان ان ایڈوانس ٹو انشور لیسنس رن اسموتھلی، یعنی استاد یہ خود سے سوال کرے کہ کیا میں اسباق کو آسانی سے چلانے کو یقینی بنانے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اس کے بعد ڈو آئی ہیو آل نیسیسری میٹیریلز اینڈ ایکوپمنٹس، کیا میرے پاس تمام ضروری مواد اور ساز و سامان موجود ہے۔ اور نمبر 3، ہاؤ ڈو آئی پلان فار ڈیفرینشیٹڈ لرننگ، کہ ایک استاد یہ سوچے کہ میں نمایاں تعلیم دینے کے لیے کس طرح سے منصوبہ بنا سکتا ہوں۔ یعنی پہلے میں منصوبہ بندی ہے۔ اب وہ منصوبہ بندی کے بغیر اگر کلاس روم میں انٹری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جسٹ ایک فارمیلٹی کے لیے کلاس روم میں داخل ہوا ہے اور وہ وہاں 40 یا 50 منٹ کا جو تعلیمی پیریڈ ہے اس کو صرف گزارنے کے لیے جا رہا ہے۔ دوسری نمبر پہ ہے کہ جب ہم کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس مواد اور ساز و سامان کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ استاد کچھ ساز و سامان اٹھا کر ہی جائے، لیکن اگر وہ درسی کتب کے ساتھ پورا جڑا ہوا ہے، جو طلباء کی درسی کتاب ہے اس کے ساتھ پورا جڑا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے جو جتنی بھی اس چیپٹر اس موضوع کے حوالے سے جو تواریخ کی باتیں آ رہی ہیں، جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، اس کے بارے میں منٹلی کیا پریپریشن ہے وہ کم از کم ضروری ہے تاکہ وہ طالب علم کو مطمئن کر سکے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ کس طرح سے وہ اس دن کے لیسن کو، یعنی اگر میں آج داخل ہو رہا ہوں تو میں یہ سوچوں گا کہ میں آج کے اس لیسن کو کس طرح سے نمایاں بنا سکتا ہوں تاکہ طالب علم جو ہیں وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں اور اس سبجیکٹ کو لے کے، مضمون کو لے کے آگے چلنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ دوسری نمبر پہ طبعی ماحول ہے، جو فزیکل انوائرمنٹ، یہ چاہے اسکول کا ہے، کلاس روم کا ہے، اوورآل سارا جو انوائرمنٹ ہے ایک پروسیجر آف ایجوکیشن کا وہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ استاد کو سیلف ایویلیویشن کے لیے طبعی ماحول کے حوالے سے یہ سوچنا ہے کہ
हैव आई क्रिएटेड ए पॉजिटिव प्लेस फॉर लर्निंग, कि क्या उसने तालीम के लिए एक मस्बत जगह बनाई है। मिसाल के तौर पे उसका क्लासरूम तो उसकी मेन जगह है, लेकिन उस क्लासरूम के अंदर मजमून के हवाले से क्या वो मस्बत है या नहीं है। इज वेंटिलेशन सफिशिएंट एंड इज द टेम्परेचर अप्रोप्रिएट। ये एक अहम चीज़ है जहां हम तालिब इल्मों की मेंटालिटी के हवाले से, उनको जहनी सुकून के हवाले से और जहनी सुकून में रहते हुए उन्हें तक तालीम पहुंचाने के हवाले से सोच सकते हैं कि क्या वेंटिलेशन, जो हवा की आमदो रफ्त का इंतज़ाम है, वो काफ़ी है, क्या दर्जा हरारत मुनासिब है, रोशनी की क्या मिकदार है। ये सारी चीज़ें अहम हैं सोचने के लिए। इज फर्नीचर अरेंज्ड टू बेस्ट इफेक्ट। तो क्लासरूम का एक जो तासुर होता है वो फर्नीचर से भी नुमायाँ होता है। तो हमें ये देखना है क्लासरूम में एंटर होके कि क्या फर्नीचर का एहतमाम बेहतरीन असर दिखाने के लिए किया गया है, यानी वो रोज़ जो हैं, अगर रोज़ में चेयर्स या डेस्क पड़े हैं तो क्या वो इक्वल हैं, क्या वो स्ट्रेट हैं, कोई दाएं बाएं इधर उधर तो नहीं है। और इसके हवाले से भी सीटिंग प्रोसेस में बिलखसूस जिस चीज़ का ख्याल ये रखना है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो बसारत के हवाले से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, वो भी टीचर के जहन में होने चाहिए। और सीटिंग प्लान इस तरह होना चाहिए कि जब टीचर कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, कोई सवाल समझा रहा है, तो आया वो तमाम तालिब इल्मों के लिए विजिबल है या नहीं है। तो ये है क्लास रूम का वो फर्नीचर का इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है कि इज देयर ईज ऑफ मूवमेंट इन द क्लासरूम। बाज़ क्लासरूम्स बहुत डंप होते हैं, वहाँ टीचर्स का मूव करना ज़रूरी जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह की सेटिंग्स को भी अरेंज कर लेना चाहिए कि दौरान तदरीस उस्ताद जो है वो मूव करे, चाहे वो रोज़ में मूव करे, लेकिन वो जो मूवमेंट है क्लास में उसको ईजी बनाने के लिए तो कमरे में नकलो हरकत जो है उसके अमल को आसान बनाना है। किसी तालिब इल्म को भी जाहिर है अपनी जगह से निकल के फ्रंट पे आके कुछ प्रेजेंट करना हो सकता है, इसलिए जो क्राउडेड क्लासरूम्स में हैं उनमें इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट है, कैन द बोर्ड बी इजीली सीन। क्या ये जो वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है या स्मार्ट बोर्ड है या कुछ भी प्रेजेंटेशन के लिए जो चार्ट्स टीचर जो क्लास में लाया है वो जहाँ पे प्लेस कर रहा है या वो जहाँ ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, क्या वो तमाम तालिब इल्मों की नज़र में हैं, या ये ना हो कि कुछ छोटे कद वाले जो बच्चे हैं वो पीछे बैठे हों और उनके लिए उसको देखने में दुश्वारी हो, या वो उनकी नज़र कमज़ोर हो और वो उस्ताद के लिखे गए काम को देखने में दिक्कत महसूस कर रहे हों। ये सारी चीज़ें सीखनी है। डू डिस्प्ले स्टूडेंट वर्क। जो अहम चीज़ है कि जो तालिब इल्म का किया गया अच्छा काम है, जिसे होमवर्क कह सकते हैं, उसके हवाले से हम आखिर में बात करेंगे। क्या टीचर एक अच्छे तालिब इल्म के काम को डिस्प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ऐसे कर सकता है कि वो एक अच्छे तालिब इल्म के अच्छे किए गए काम को बाकी तलबा के लिए मिसाल के तौर पे उनके सामने पेश कर सकता है, उसको दाद दे सकता है और बाकियों को मोटिवेट कर सकता है, उसके हवाले से मुतहर्रिक कर सकता है। ये आजकल जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है जिसका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम क्या साफ़ है, क्या वो रोज़ाना की बेसिस पे सफाई होती है, क्या डस्ट जो है वो डेस्क पे और स्टूडेंट्स की बैठने की जगह पे बहुत ज़्यादा गर्द गुबार तो नहीं है, यानी क्या क्लासरूम मेरा साफ़ सुथरा है या नहीं, ये भी एक टीचर को सोचना है। आगे है रिलेशंस विद द स्टूडेंट्स, यानी तलबा से जो ताल्लुकात हैं एक टीचर के, उनका क्या मेयार है। आपको पता है कि तलबा के साथ ताल्लुकात, दोस्ताना माहौल जो है वो क्लास के अंदर एक बेहतरीन तदरीसी माहौल पैदा करता है। इस हवाले से अपनी तशखीस के लिए अगर मैं खुद से सवाल करूं तो मैं ये सोचूंगा क्लास शुरू होने से पहले या एक क्लास के ख़त्म होने के बाद कि व्हाट एविडेंस इज़ देयर ऑफ ए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, यानी मस्बत माहौल का क्या सबूत है, वहाँ क्या है। अगर आपके जो तालिब इल्म हैं वो क्लास में उनके चेहरों पे कोई डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा, तो दैट इज़ ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि वहाँ लर्निंग का जो अमल है वो दोस्ताना माहौल में हो रहा है।
اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہاؤ ویل ڈو آئی نو مائی اسٹوڈنٹس، کہ میں اب جس کمرہ جماعت میں جا رہا ہوں یا جتنے عرصے سے میں جا رہا ہوں، تو مجھے اپنے خود تشخیص اس طرح کرنی ہے کہ میں اپنے طالب علموں کو کتنا اچھی طرح سے جان سکتا ہوں، کتنے طالب علموں کے نام جانتا ہوں، جن کے نہیں جانتا ان کے حوالے سے ان کے ساتھ میں کتنی انٹریکشن کر سکتا ہوں، اور انٹریکشنز میوچولی ریسپیکٹفل۔ ایک استاد کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا بات چیت باہمی طور پر قابل احترام ہے۔ اس بات چیت میں استاد کی طالب علم کے ساتھ اور طالب علموں کی طالب علموں کے ساتھ بات چیت بھی شامل ہے۔ دونوں کو پازیٹیو جو ہے وہ فیڈ بیک دینا ضروری ہے۔ استاد کو زیادہ سے زیادہ طالب علموں سے بات چیت کرنی ہے اپنے عنوان کے حوالے سے، اور پھر جب گروپ ورک میں آنا ہے تو طلباء کے آپس میں بات چیت کرنے کے طریقے کو بھی خیر مقدم کرنا ہے، اسے بھی بہتر بنانا ہے۔ Do I keep a good balance between positive and negative consequences in relation to behavior؟ کیا میں سلوک کے سلسلے میں مثبت اور منفی نتائج کے درمیان اچھا توازن برقرار رکھتا ہوں؟ یعنی جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کلاس روم ہے، ڈائیورسٹی ہے، بہت سے طالب علم ہیں جن کی ذہنی صلاحیتیں، جن کی بصری صلاحیتیں، جن کے کام کرنے کی صلاحیتیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ وہاں استاد کتنی توجہ سے کام کر رہا ہے، وہ اس فیکٹر کے اوپر کتنا سوچ رہا ہے کہ میں کس طالب علم پہ انفرادی توجہ کے ساتھ اپنی اس کلاس کو بہترین سے بہترین بنا سکوں گا۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے لیسن پیسنگ، جو سبق کی رفتار ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض کلاسز میں آج کل کی جو روٹین بن چکی ہے، جو کہ ایک سلسلہ تدریس میں اور لرننگ کے پروسیس میں ایک نیگیٹو رسپانس جو چیز دے رہی ہے، وہ ہے لیسن پیسنگ، کہ بعض استاد اتنی تیزی سے وہ اپنے چیپٹرز کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس سے بڑھ کے ان کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اور والے سے ایک استاد یہ سوچے کہ is the pace of my lessons appropriate to complete my planned lesson، کہ جو بھی سبق روزمرہ کی کلاسز کا پلان ہوا ہے، کیا اس کی اتنی رفتار ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اندر کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور وہ جو مقررہ وقت کے اندر ہے وہ ایک چیپٹر ہے یا آدھا چیپٹر ہے یا ایک چیپٹر کی کوئی ایک ایکسرسائز ہے، یہ اس کے اوپر مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے زیادہ۔ Do my lessons show progression؟ کیا میرے اسباق ترقی کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ بھی استاد کے لیے سوچنا ضروری ہے کہ جو وہ پڑھا رہا ہے طالب علموں کے اوپر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، کیا اس کے حوالے سے استاد اپنی تدریس کا موازنہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ So next is, does my pacing offer adequate opportunities for active student engagement؟ کہ کیا جو ٹیچر کی پیسنگ ہے لیسن کی، اس میں جو طلباء کی سرگرمیوں کے لیے مناسب مواقع فراہم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل لیسن پلان تو ہو گیا، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ 3 منٹ پر مبنی کوئی گروپ ورک نہیں رکھا، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس اے پازیٹیو کلاس روم لیسن پلاننگ افیکٹ آن اسٹوڈنٹس۔ تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی جو لیسن پیسنگ ہے اس کے حوالے سے ضرور آپ سوچیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹس موٹیویشن، طالب علموں کی حوصلہ افزائی۔ جو اسٹوڈنٹس موٹیویشن ہے کلاس روم کے اندر، یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں بہت سی چیزیں ہیں موٹیویشن کے حوالے سے۔ ایک ڈل قسم کے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹنے کے بجائے ایسی حکمت عملی سے عمل کیا جائے کہ وہ اس کے اوپر اسٹوڈنٹ خوش ہو جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے سوچا تھا کہ یہاں تو استاد نے میری بے عزتی کرنی تھی لیکن انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو یہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کا ایک ایسا عمل ہے جو اسٹوڈنٹ کے دل و دماغ پہ پازیٹیو اثر جو ہے وہ چھوڑتا ہے۔ تو طالب علموں کی حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے۔ جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کی تو ہے ہی، لیکن وہ بھی اس طریقے سے ہو کہ جو ڈل اسٹوڈنٹ ہیں وہ خود بخود اس کی باتوں سے، استاد کی باتوں سے جو وہ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہا ہے، اور دوسرے جو ڈل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس سے اپنی حوصلہ افزائی قرار دیں۔ سو
what do I do to engage pupils from beginning of my class? For example, मैं जब क्लास में दाखिल होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि क्लासरूम का माहौल ऐसा गरमाइश पा जाए कि सारे तालिब इल्म जो हैं वो इसमें शमूलियत के लिए एक्टिव हो जाएं। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। यानी आप कोई वार्म अप एक्टिविटी लेके जा रहे हैं, आप कोई क्विज एक्टिविटी लेके जा रहे हैं जो 1 से 2 मिनट पर मुश्तमिल है, जिससे सारे तालिब इल्म एक बार एक्टिव हो जाएं और वो आपके प्लान शुदा लेसन को पढ़ने के हवाले से बिल्कुल रेडी हो जाएं। डू आई कॉन्शियसली बिल्ड ऑन द स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज? क्या मैं तुलबा के साबका इल्म की तामील बागौर करता हूँ? इससे मुराद ये है कि मुझे ये सोचना चाहिए कि जब मैं क्लास में जा रहा हूँ तो मैं अपने उस उन्वान को डायरेक्टली अनाउंस ना कर दूं, बल्कि स्टूडेंट्स की दिलो दिमाग को उस ट्रैक पे लाने के लिए उस मौजू से मुतल्लिका उनकी जो गुज़िश्ता मालूमात हैं उसका जायज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो ये मैं ज़रूरी समझूंगा। अगर मैं नहीं कर रहा तो मुझे ये सोचना होगा कि मैं अपनी क्लास को किस तरह से क्लासरूम में दाखिल होते ही मोटिवेट कर सकता हूँ उस दिन के लेसन के लिए। Do I establish expectations and procedures for each class? क्या मैं हर तबके के लिए तवक्कुआत और तरीक़ाकार मरतब करता हूँ? Share the learning goals with the students. जब भी लेसन प्लान किया जाता है, लेसन प्लानिंग के बाद कुछ उस दिन की तालीम के कुछ अहदाफ होते हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो मुझे ये सोचना चाहिए बहसीत टीचर कि मैं जब क्लास में जाता हूँ, जो टॉपिक पढ़ाता हूँ, क्या मैं तुलबा के साथ सीखने के अहदाफ को बयान करता हूँ? तो ये ज़रूरी है कि कर लिया जाए कि आज की तदरीस के बाद हम ये देखेंगे कि क्या हमने ये सीखा, उस मौजू से मुतल्लिका कुछ भी बात हो सकती है, तो ये उस्ताद को ज़रूर सोचना चाहिए। डू आई एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट सक्सेस? क्या मैं कामयाबी को तस्लीम करता हूँ और खुश होता हूँ कि क्लासरूम में दौरान तदरीस बाज़ औक़ात ऐसे इन्वायरमेंट आते हैं कि एक डल से डल बच्चा आपके सवालात के ऊपर इतना एक्टिवली जो है वो रिस्पॉन्स करता है कि उस्ताद दिली तौर पे खुशी का इज़हार करता है। तो वो खुशी जो है वो तालिब इल्मों के साथ मनाई जानी चाहिए, बाकियों के साथ भी, कि देखें ये तालिब इल्म जिसको ऐसा समझा गया था, ये आज माशाल्लाह इसने एक अच्छे अंदाज से आउटपुट दिया है। तो इसी तरह से वो एक ऐसी मोटिवेशन होगी जिससे वो तालिब इल्म आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्लास में जो तनों है, डाइवर्सिटी इनटू द क्लासरूम। डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि इसके आसान तरीन मिसाल हम यूँ समझ लेते हैं। कुछ तो हो गया जहनी और यानी दिमागी तौर पे कुछ ऐसे बच्चे जो ज़्यादा जल्दी से बातों को क्लियर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी डाइवर्सिटी भी क्लासेस में होती है बड़े स्कूल्स के अंदर, जहाँ मुख्तलिफ तबकात मुआशरे के वहाँ से वो बच्चे आए होते हैं, शायद जिनके कल्चर में ओवरऑल तो नहीं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ज़ुबान का फ़र्क हो सकता है। हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ये फैक्टर मौजूद हैं, जहाँ पश्तो बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, पहाड़ी बोलने वाले और बहुत से ज़ुबानें बोलने वाले जो तालिब इल्म हैं वो बैठे होते हैं। तो ये है डाइवर्सिटी इनटू द क्लासरूम। तो बहसीत उस्ताद जब मैं क्लास में दाखिल हूँ तो मुझे ये सोचना चाहिए अपने बारे में कि व्हाट टीचिंग मेथोडोलॉजीज डू आई यूज़ टू इंगेज पपल्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। यानी तलबा को सीखने के मुख्तलिफ मराहल से मुंसलिक करने के लिए कौन से तदरीसी तरीक़े कार का मैं इस्तेमाल करूँगा, जिससे वो जो सारी डाइवर्सिटी है, वो जो क्लास में तनों है, वो सारे का सारा एक लेवल पे आके उस बात को अंडरस्टैंड कर लें। और व्हाट स्ट्रैटेजीज डू आई अडॉप्ट टू इंगेज लेस एबल स्टूडेंट्स, यानी कम काबिल तलबा को शामिल करने के लिए मैं क्या हिकमत अमली अपनाता हूँ। ये एक इंतहाई अहम बात है एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर, और ये टीचर की ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो कम काबिल तलबा को, जो डल किस्म के जिनको समझा जाता है, क्या वो उनको किसी तदरीसी सरगर्मी में शामिल करने के लिए कोई हिकमत अमली बजा ला रहा है या नहीं ला रहा। तो अगर ये बजा ला रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है कि मैं एक फुली जस्टिस के साथ, मुकम्मल इंसाफ के साथ अपने क्लासरूम में काम कर रहा हूँ।
What strategy do I adopt to support learning for the special needs students in my class? फिर मुझे ये भी सोचना है क्लास में जाने से कबल या अपनी क्लास लेने के बाद कि मैं अपनी क्लास में खसूसी ज़रूरियात यानी कोई माजूरी रखने वाले तलबा की तालीमी मुआवनत के लिए क्या हिकमत अमली अपनाता हूँ। अगर किसी को कम नज़र आता है तो मैं क्या उसको करीब बुलाकर उसको हौसला देकर उसकी वजह से बोर्ड के ऊपर बड़ा लिख कर मैं उसको कोई फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ या नहीं पहुँचा रहा, ये चीज़ें सोचना भी बहुत ज़रूरी है। So what strategies I employ to ensure the active participation of all students in my class? मुझे ये भी सोचना है कि अपनी क्लास में मौजूद तमाम तलबा की फ़ाल शिरकत को यकीनी बनाने के लिए क्या हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वो सारे सवालात जिन पे हम बात कर रहे हैं, जो क्लासरूम एक एक्टिव क्लासरूम के माहौल को ज़ाहिर कर रहे हैं। बहसियत उस्ताद हमें अपनी तशख़ीस करने के लिए इस तरह के सवालात करना बहुत ज़रूरी हैं, जो हर माहौल के मुताबिक अलग-अलग तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यही चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस के ऊपर बातचीत हो रही है। फिर यह है कि व्हाट इम्पोर्टेंस आई गिव टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ माई स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने तलबा की माशरती तरक्की को क्या अहमियत देता हूँ। बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया है। ये जो सिलेबस क्लियरेंस करने का, नंबर लेने का जो कल्चर चल उठा है, इसमें इस बात को बिल्कुल भुला दिया गया है कि आया ये तो सोचा जाए कि हो सकता है कोई डल बच्चा वो एक अच्छा शायरी बन जाए, वो एक ऐसा नुमायां शायरी बन जाए जो बड़ों की इज्जत करे। ये बात जो है वो बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम के अंदर ही तलबा की माशरती तरक्की को अहमियत दी जाए और उन्हें उस दरसी किताब के मौजू के साथ साथ माशरती तरक्की के हवाले से भी बताया जाए। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल का इस्तेमाल जो है ये एक अहम पॉइंट है। व्हाट रिसोर्सेज अदर देन द टेक्स्ट बुक आई एम्प्लॉय इन माई क्लासरूम। सबसे पहला जो वसीला क्लास के अंदर एक अच्छी तदरीस का है वो तो दरसी किताब है, लेकिन आजकल ये भी मुशाहिदे में आया है कि मैं अक्सर देखता हूँ पब्लिक स्कूल्स के अंदर के बहुत से तालिब इल्मों को उस्ताज़ा ही कह रहे होते हैं कि वो ये गाइड ख़रीद के लाएं, फ़लाँ जो है वो प्राइवेट पब्लिशर की गाइड ख़रीद के लाएं, और स्टूडेंट्स ने बड़ी मोटी मोटी जो गाइड्स हैं वो 650-700 की कीमत की जो है वो ख़रीद के ले आते हैं। तो इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है स्टूडेंट्स के ऊपर वो ये है कि तलबा अपनी दरसी किताब से नहीं जुड़े रहते, वो क्लास के सबक पर गौर नहीं करते, क्योंकि उनके जहन में ये चीज़ होती है कि अगर मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा, अगर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, तो मेरे पास ये गाइड मौजूद है, मैं घर में देख के वहाँ उस गाइड से लिख लूँ। ये एक ओवरऑल जो प्रॉब्लम है जिसको मैंने फेस किया है पब्लिक स्कूल के अंदर, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि उस्ताद को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं अपनी क्लासरूम में दरसी किताब के अलावा कौन से वसाइल का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये वसाइल में जो गाइड बुक्स हैं ये नहीं आनी चाहिए, और ना ही तलबा के लिए और ना ही उस्ताद के लिए। ये है कि उन वसाइल को क्रिएट करना चाहिए। कोई चार्ट्स लेके चले जाएं, किताब के अंदर से ही तस्वीर को किताब स्टूडेंट के सामने यूं डिस्प्ले करके हम उसको बता सकते हैं। ये भी एक सोर्स है। लेस रिसोर्सेज वाले जो अदारे हैं वहाँ पे इस तरह के रिसोर्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो ये सोचना चाहिए एक उस्ताद को, बिलखसूस मेरे जैसे उस्ताद को, जब हम क्लास में दाखिल होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि किस किस्म के वसाइल हमें वहाँ पे लाने हैं, ज़ाहिर कार ला के तदरीस को बेहतर बनाना है। सो व्हाट रिसोर्सेज आई यूज़ टू सपोर्ट डिफरेंशिएटेड लर्निंग इन माई क्लासरूम, यानी मुझे ये भी सोचना है क्लास में जाने से पहले कि क्लासरूम में इम्तियाजी तालीम हासिल करने के लिए मैं कौन से वसाइल इस्तेमाल करूँगा। तो अगर वो आपके पास मौजूद हैं तो उनका इंतज़ाम करेगा वो लेसन प्लानिंग में, अगर मौजूद नहीं है तो लेसन प्लानिंग इस अंदाज से करेगा कि जो दस्तयाब ज़राए हैं उनके ज़रिए वो अच्छी तदरीस कैसे कर पाए। असेसमेंट, जो जायज़ा और तशख़ीस है, ये एक अहम पॉइंट है क्लासरूम के हवाले से, तदरीस के हवाले से, कि उस्ताद को खुद से ये सोचना चाहिए अपने मुआज़ने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट डू आई यूज़,
کہ मैं जायज़े की कौन सी किस्म को इस्तेमाल करूँगा, मैं स्टूडेंट्स का जायज़ा किस तरह लूँगा, उनसे ज़ुबानी सुन के लूँगा और ज़ुबानी टेस्ट लूँगा, मारूज़ी टेस्ट लूँगा, ये किस तरह के जायज़े मैं वहाँ स्टूडेंट से ले सकता हूँ। हाउ डू आई मेक यूज़ ऑफ रिजल्ट्स टू गाइड माई प्लानिंग, कि मैं अपनी मनसूबाबंदी की रहनुमाई के लिए नताइज का किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। गुज़िश्ता क्लासेस के नताइज को सामने रखते हुए आइंदा आने वाली जो क्लासेस हैं उनकी असेसमेंट्स के लिए ये जायज़ा बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक डू आई गिव टू स्टूडेंट्स, कि उस्ताद को ये भी सोचना है कि वो किस तरह की राय जो है वो फीडबैक स्टूडेंट्स को दे रहा है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि वो चाहे स्टूडेंट्स ने थोड़ा काम किया है या ज़्यादा काम किया है, जो उस्ताद का फीडबैक है वो हमेशा मस्बत ही रहना चाहिए, उसको पॉजिटिव ही होना चाहिए। इज़ माई फीडबैक स्पेसिफिक एंड डायग्नोस्टिक इन नेचर, कि क्या मेरी राय फितरत में मखसूस और तशखीसी है, यानी फितरी तौर पर जो स्टूडेंट्स का मुवाजना करने के बाद, स्टूडेंट्स के काम का मुवाजना करने के बाद उस उस्ताद को अपनी राय कायम करनी चाहिए और उसको पॉजिटिव रखने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, जिससे तालिब इल्म खुद अपनी कमी की खुद ही तशखीस कर ले। डू आई इनकरेज स्टूडेंट्स सेल्फ असेसमेंट, कि क्या मैं तालिब इल्मों की खुद तशखीस की हौसला अफजाई करता हूँ या नहीं करता। ज़रूर एक ऐसा लायमल होना चाहिए ताकि तालिब इल्म भी खुद अपनी खूबियों और खामियों को पहचानने के लायक बन सकें। डू आई इनकरेज पेयर असेसमेंट, क्या मैं हम मरतबा की तशखीस की हौसला अफजाई करता हूँ, कि फॉर एग्जांपल पेयर असेसमेंट इज़ दैट कि स्टूडेंट्स क्लास के अंदर बहुत से होते हैं, वहाँ आप ये सोचते हैं कि स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से जो तदरीसी रहनुमाई है, जो बढ़ोती है एक दूसरे से, उसका जायज़ा कैसे ले रहे हैं। वो एक ऐसा जायज़ा है जो उनको मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने की। और जब तक हम क्लासेस में ग्रुप वर्क को आम नहीं करते और स्टूडेंट्स की आपस में डिस्कशन को टॉपिक के हवाले से उसका लायमल क्लासेस में इख्तियार नहीं करते, तो ये एक नामुमकिन सा काम बन जाता है। तो ये वो हसूल थे जायज़े तक के जिनको हमने स्टडी किया है। लास्ट में हम होमवर्क देते हैं, तो ये होमवर्क क्या है। होमवर्क, डू आई सेट मीनिंगफुल टास्क फॉर होमवर्क टू कंसोलिडेट वर्क डन इन क्लास और टू लुक अहेड टू नेक्स्ट क्लास, कि उस्ताद को ये सोचना है अपनी क्लास में कि क्या मैं होमवर्क के लिए मानी खेज काम तय करता हूँ, यानी क्लास में किए गए काम को मुस्तहक्किन करने के लिए आइंदा क्लास में या फिर आइंदा क्लास में देखने के लिए। ये एक मुझे ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं जो स्टूडेंट्स को होमवर्क दे रहा हूँ वो एक सरसरी होमवर्क नहीं है कि आपने कल ये करके लाना है, आपने कल ये लिख के लाना है, ये याद करके लाना है, नहीं, बल्कि मेरा जो होमवर्क जो मैं स्टूडेंट्स को असाइन कर रहा हूँ वो 100% रिलेट करना चाहिए मेरी आज की उस क्लास वर्क की सरगर्मी के हवाले से, ताकि स्टूडेंट भी अपने अंदर की बात को क्रिएट करे और होमवर्क में उसको नुमाया करके वापस ले आए। डू आई टेक अकाउंट ऑफ द लेंथ ऑफ टाइम इट शुड टेक फॉर स्टूडेंट्स टू कंप्लीट माई होमवर्क, ये बात अहम ज़रूरी है जो एक उस्ताद को जो मुझे जहन में रखनी चाहिए कि क्या मैं तुलबा को जो काम दे रहा हूँ उसके वक्त का भी जायज़ा लगा रहा हूँ कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना टाइम उनको लगाना पड़ेगा, यानी क्या मैं तुलबा को अपना होमवर्क मुकम्मल करने के लिए दिए गए वक्त का हिसाब रखता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है ताकि चूँकि दीगर बहुत से मज़ामीन होते हैं, 7 से 8 मज़ामीन के साथ एक तालिब इल्म को काम करना होता है, इसलिए हर टीचर को जो होमवर्क की रेशो है उसके हवाले से उसका हिसाब रखना बहुत ज़रूरी होता है। So, do I establish expectations and procedures for each class? फिर ये मुझे सोचना चाहिए कि क्या मैं हर तबके के लिए तवक्कुआत और तरीक़ाकार मुरतब करता हूँ, यानी जिस तरह का स्टूडेंट का लेवल है, क्या उसका होमवर्क, क्या उसकी क्लास की सरगर्मी या दीगर काम उसकी ज़हनी सलाहियत के बराबर हैं, ये बहुत ज़रूरी है। डू आई डिफ्रेंशिएट होमवर्क, क्या मैं होमवर्क में फ़र्क करता हूँ, यानी एक तालिब इल्म को कुछ दूसरे को कुछ, ऐसा हो भी सकता है अगर आप सारी की सारी क्लास जो है वो इंटेलिजेंट बेसिस में आती है, पैमाने पे आती है, तो फिर तो आप एक जैसा पैमाना होमवर्क का रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो असाइन कीजिए हर स्टूडेंट की ज़हनी इस्तादाद के बराबर
اس کو ہوم ورک اسائن کیجیے. ڈو آئی چیک مانیٹر ہوم ورک ایوری ٹائم اٹ از سیٹ. پھر یہ مجھے سوچنا ہے کیا میں اخذ کیے گئے ہوم ورک کی جانچ یا نگرانی کرتا ہوں. یہ تو بہت ضروری ہے. جب آپ کلاس روم میں پڑھائے گئے کام کے حوالے سے اس سرگرمی کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کو ہوم ورک دیتے ہیں اور دوسرے دن اس ہوم ورک کو چیک کرتے ہیں اس کی اپنی نگرانی میں, اسی کے پاس سے اسٹوڈنٹس کے پاس رہ کر اس کو کام کو چیک کرتے ہیں اور اس کو موازنہ کرتے ہیں کلاس ورک کے حوالے سے, تو یہ ایک پازیٹیو رسپانس ہے اور اسٹوڈنٹ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے. تو آج تک کے یہ سارے جو مراحل تھے ایک ٹیچر کی سیلف ویلیویشن کے حوالے سے, جو خود کی تشخیص ہے, اس پہ ہم نے بات کی ہے. تو آپ تمام احباب کا ویڈیو دیکھنے پر میں شکر گزار ہوں. تو میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس ویڈیو پہ کمنٹ کیجئے. معزز اساتذہ کرام جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور کمنٹ کیجئے, اپنی قیمتی رائے سے مجھے بھی مطلع کیجئے اور میرے علم میں بھی مزید اضافہ کیجئے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.